வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் ராணி சுப்ரமணியன், அஜ்மீரா ஃபேஷன்ஸ்லேருந்து. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்க போது. இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்கணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து நான் மீட் பண்ண போகிற பர்சன் யாருன்னா, நீங்கள் வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. இன்றைக்கி அஜ்மீரா ஃபேஷன்ஸோட சிஇஓ மிஸ்டர் அஜய் அஜ்மீரா சார் கூட தான் நான் இன்றைக்கி வந்து பேச போகிறேன். இன்றைக்கி சார் கூட நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அவரோட ட்ராவல் எப்படி இருந்தது, டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி, அதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி அவர் கூட ஒரு குட்டி இன்டர்வியூ தான் நான் வந்து அவர் கூட பேச போகிறேன். நீங்கள் மக்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோவில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ வந்து பாருங்கள், பார்த்துட்டு உங்களோட இது வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க மக்களே, இப்போ வந்து நம்ம சாரை மீட் பண்ணலாம். நான் இங்கே தான் இருக்கேன். ஸோ வணக்கம் சார். வணக்கம், நமஸ்தே. சார், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு. எனக்கு உங்கள் பிஸி டைமில் எவ்வளோ பிஸியாக இருப்பீங்க, அதனால் எனக்கு உங்கள் அந்த பிஸி ஷெட்யூலையும் உங்கள் டைம் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து இப்போ கேஷுவலி உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களோட லைஃப் ஜேர்னி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து உங்களோட பயணம் இருந்தது, அது பற்றி தான் வந்து நான் பேசிட்டு மக்களுக்கும் வந்து தெரிஞ்சுக்கினா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். வாங்க சார், நம்ம பேசலாம். சார், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் நீங்கள் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, அண்ட் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஐடியா எந்த விஷயம் உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு, உங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அதை பற்றி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அந்த என்ன விஷயம் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சுன்னா அது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். एक्चुअली टेक्सटाइल में तो आने का कहीं कोई इरादा ही नहीं था मेरा। तो मैं तो बॉम्बे के नज़दीक सूरत था और मेरी मंजिल थी बॉम्बे जाने की, बॉलीवुड में जाने की, फिल्म में हीरो बनने की। तो ये सोचा कि चलो सूरत भेज रहे हैं घर वाले, अभी थोड़े दिन सूरत रह लेंगे, फिर तो अपने को तो मुंबई जाना ही है। तो वो फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध आंखों पे छाई हुई थी और हीरो बनने की तमन्ना थी दिल में, तो वही लेके सूरत आया था। टेक्सटाइल का कुछ भी टी भी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब एक रात बॉम्बे रहा तो वहाँ की सारी चकाचौंध ख़त्म हो गई मेरी और वापस मैं सूरत आ गया। फिर मैंने टेक्सटाइल की जर्नी स्टार्ट करी सन 1992 में। वापस जब मैं मुंबई से एक दिन रात को वहाँ रह के वापस सूरत आया, और फिर मैंने एक ब्रोकरेज के तौर पे मैंने ये स्टार्ट किया था। टेक्सटाइल का जो ब्रोकर होता है, कच्चा माल जो इधर से उधर देता है। ऐसे मुझे तमिल आती नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन आप जो पूछ रही हैं तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कितना क्या मेरे से समझना चाह रहे हैं, तो उसी का मैं आपको रिप्लाई करता हूँ वापस। फिर मैंने एक अच्छी सी कंपनी के अंदर जॉब करी टेक्सटाइल में ही। पूरा फील्ड मेरा टेक्सटाइल से ही रहा, 92 से लेके अभी तक, आज तक टेक्सटाइल से ही जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ से मैंने एक टेक्सटाइल कंपनी में अच्छी में जॉब किया। जॉब करने के बाद वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि सूरत में एक लेडीज़, एक रिटेलर को कोई भी कपड़ा देता नहीं है। लेडीज़ अगर कोई कपड़ा खरीदने आई भी ना, तो उसको मना कर दिया जाता है कि नहीं, लेडीज़ अलाउ ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो या तो यूज़ करने के लिए खरीदती है, या वो छोटा बिजनेस करने के लिए खरीदती है, या एक रिटेलर होती है। तो यहाँ रिटेलर को कपड़ा नहीं दिया जाता है। ये चीज़ मेरे दिमाग में एक पूरी तरीके से बैठ गई थी बात, कि यार लोग इतना मन में एक आत्मविश्वास लेके आते हैं, एक सोच के आते हैं जोश के साथ कि हम सूरत जाके हम भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और यहाँ आके उनको ऐसा मिलता है। तो ये मुझे एक दूर करना है। इसीलिए मैंने अच्छी खासी मेरी नौकरी थी, वो मैंने 2011 में छोड़ के, वो नौकरी छोड़ के मैंने अपनी एक अजमेरा फैशन जो अपनी कंपनी है खुद की, वो स्टार्ट करी। और मोटो मेरा यही था, विज़न यही था कि मैं एक रिटेलर को कपड़ा दूंगा। बट अब ये बात मैं पहुंचाऊं कैसे लोगों तक, रिटेलरों तक, क्योंकि एक दो रिटेलर आके मेरे से ले जाए तो काम चले नहीं। इस चीज़ को मेरे को लोगों तक पहुंचाना था। तो मैं 25 साल पिछले जो काम किया था, 20 साल वो मैंने काम किया होलसेल बेस का। तो मैंने भी जो है
होलसेलरों को ही देना स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपनी बात को रिटेलरों तक पहुंचाने का कोशिश किया कि एक मैन्युफैक्चरर है जो डायरेक्ट एक रिटेलर को उसी रेट में कपड़ा देता है जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देता है। तो दोनों चीज़ मैंने ये बैलेंस करके कंटिन्यू चलाते रहा। 2014 और 15 में भी वहाँ पे मुझे फिर ये डीलर्स वगैरह जो है ना, ये मुझे बोलने लगे कि आप रिटेलर को भी कपड़ा उसी रेट में दे रहे हो जिस रेट में आप हमको देते हो। तो बहुत नाराज़ हुए, बहुत तकलीफ़ें आई। एक समय ऐसा आया कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन फिर मैंने लास्ट में यही डिसाइड किया, 10 डीलर खाली चले जाते हैं चलेगा, कोई इशू नहीं है, 10 होलसेलर खाली चले जाते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन एक रिटेलर जो अपने से मोटिवेट होके या जो अपने से बिजनेस करने की प्रेरणा लेके सूरत आया है और बिजनेस करना चाहता है, तो उसको हमें बिजनेस करवाना है, उसकी हिम्मत किसी कीमत पे टूटने नहीं देनी है। तो इसीलिए मैंने इस बिजनेस को कंटिन्यू किया। आज डीलर भी है, होलसेलर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग जो है रिटेलर्स की है, जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनकी है, और वो ब्लेसिंग ही है जो मुझे आज मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने के लिए, और मैं कोशिश करते रहता हूँ। बढ़िया सर, बहुत अच्छा आइडिया। आपका आइडिया सुनकर मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन हुई है। थैंक यू। மக்களே, இப்போ நான் சார் கிட்ட கேள்வி கேட்டது என்னன்னா வந்து, இந்த ஐடியா அவருக்கு எப்படி வந்தது, இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாருன்னு. அவரோட ஐடியா கொடுத்தது வந்து எப்படின்னா, அவர் வந்து அவரோட பயணமே வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஜேர்னி வந்து பாம்பே போயிட்டு ஒரு பாலிவுட் ஹீரோ ஆகணும்னு சொல்லி தான் அவர் ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஆனால் அவருக்கு வந்து அது வந்து அவருக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலையில் வந்து அதை வந்து திரும்பி வந்து திடீர்னு அவர் வந்து சூரத் வந்த பிறகு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயர் ஜாயின் பண்ணி அவர் வேலை பார்க்கும்போது தான் அவருக்கு இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ரீட்டெயிலர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெஷலி பெண்கள் வந்து வரும்போது துணி கேட்கும்போது இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணுமே, நம்ம ஏன் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் அவர் ஒரு எம்ப்ளாயர் ஜேர்னி ட்ராவல் பண்ணி ஒரு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு சாதாரணமாக நம்ம மாதிரி எம்ப்ளாயர் ஒர்க் பண்ணி தான் அவருக்கு இந்த ஐடியா கிடைச்சிது. ஸோ அவருக்கு இந்த விஷயம் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகிட்டு அவர் இந்த டிசிஷன் எடுத்து தான் அவர் இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதுதான் வந்து அவரோட ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்ட கேள்விக்கு நல்லாவே வந்து அவரோட ஐடியாஸை அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு சார். சார், ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் நீங்கள் நல்லாவே பதில் சொல்லிட்டீங்க. செகண்ட் கொஷனுக்கு நான் வரேன். இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது? லைக் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களோட சேலஞ்சஸ், உங்களுக்கு அதுலேயே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்கள் கூட இன்னும் நீங்கள் மறக்க முடியாத ஒரு மூமெண்ட்ஸ் இன்னும் நீங்கள் அதை ரிமெம்பரன்ஸாக வச்சுருப்பீங்க. அதை பற்றி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சார். என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? चैलेंजेस मैं नहीं मानता हूँ इनको, ठीक है। परेशानियाँ तो देखिए, कोई भी आप बिज़नेस करते हैं तो आपको हर्डल्स तो आएंगे। कुछ भी नया काम, हम गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो शुरू में तो अपने को ऐसा फील होता है कि भाई कहाँ गियर है, कहाँ क्लच है, सामने भी देखना है, स्टीयरिंग भी पकड़ना है, ब्रेक भी लगाना है, सब। तो कोई भी नया काम अपन करते हैं तो इस टाइप की छोटे मोटे जो हर्डल्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, पर उन हर्डल्स को अपने को पार करते हुए आगे बढ़ना है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं वो सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे को चैलेंजेज आए, प्रॉब्लम्स आई, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ डीलर्स वगैरह नाराज़ हुए जो हम डायरेक्ट एक रिटेलर को जो हम कपड़ा देते हैं उसी रेट में, तो कुछ एक डीलर हैं जो नाराज़ हुए हैं हमसे, ठीक है। लेकिन अभी फिर वो सब चालू है, वापस हमसे जुड़ गए हैं, क्योंकि एक डिमांड होती है कपड़े की। अजमेरा का जब चाहिए तो अजमेरा का तो यहीं मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं, तो उनको मजबूरी बस हमारे पास आना पड़ता है और वो लेते हैं। तो ये और बाकी तो छोटी मोटी चुनौतियाँ आती हैं, बट उनको क्या है, वो कहते हैं कि गिरना बुरी बात नहीं है, पर गिर के गिरे रह जाना बुरी बात है। आप चोट खाओ, गिरो और फिर से खड़े हो जाओ, और ये ध्यान रखो कि भाई दोबारा उसी जगह चोट नहीं खानी है, उसी पत्थर से चोट नहीं खानी है, एक गलती रिपीट नहीं करनी है। तो ये चीज़ का हमें खास ख्याल रखना चाहिए।
மக்களே சார் வந்து என்னோட செகண்ட் கொஷின் நான் கேட்டிருந்தேன், எப்படி வந்து இந்த ஜேர்னி உங்களுக்கு இருந்தது, என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னு. சார் வந்து நல்லாவே அதுக்கு வந்து ரிப்ளை கொடுத்துருக்காரு. லைக் சேலஞ்சஸ்னால் அந்த மாதிரி எதுவுமே சேலஞ்சஸ் எனக்கு கிடைக்கல, வந்ததில்லை. பட் எல்லாமே நான் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கலன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். அதே மாதிரி அவர் வந்து நினச்சது என்னென்னா, ஒரு ரீட்டெய்லருக்கும் நம்ம வந்து அதே ப்ரைஸில் நான் வந்து கொடுக்கணுன்றது அவரோட ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்குன்னு தான். அதில் தான் அவருக்கு டீலர்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஆனால் இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே சால்வ் ஆயிடுச்சு. அவங்களும் வந்து திரும்பி வந்து ஒன்றா சேர்ந்து தான் அந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட வந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரீட்டெய்லர்ஸ்க்கும் அஜ்மீரா ஃபேஷன்ஸ் மூலிமா கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பாக வரணும் இல்லையான்றது தான். ரீட்டெயிலர்ஸ்க்காக நான் இந்த ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் தான் பார்த்துருக்கேன்னு சொல்கிறாரு. மற்றபடி அவருக்கு பெருசாக எதுவும் சேலஞ்சஸ் வரல. வந்தது எல்லாமே ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு போய் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு. சார், என்னோட தேர்ட் கொஷின் வந்துட்டு, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்ல வரேன்னு நினைக்கிறேன்னா, உங்களுக்கு இந்த கொஷனில் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் சம்திங். எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து பார்த்திங்கன்னா மணி மேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லோரும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணலாம், அதை ட்ரை பண்ணலான்னு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க, கிவ் அப் பண்ணிடுறாங்க. எண்ட் ஆஃப் த டே மணின்னு சொல்லும் போது எப்படியாவது நம்ம வந்து செட்டில் ஆகணும், ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ணணும், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லா லைஃப்பையும் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும், ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்காக ஓடுறாங்க. ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது நீங்கள் மக்களுக்கு வந்து இந்த டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இது யாரெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்ன்றது உங்களோட தாட்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் இல்லை உங்களோட ஐடியாஸ் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார். बिल्कुल, सब लोग भाग रहे हैं और देखिए, कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, कोई किस तरीके से पीछे भाग रहा है, लेकिन लास्ट में एक आके यहाँ रुक जाता है कि लास्ट में सबको पैसा चाहिए। ठीक है, भागना ज़िंदगी है, मैं ये बोलता हूँ। हर इंसान को सुबह उठते हैं तो भागना ही पड़ता है। इंसान को क्या, एक जानवर की भी मैं बात करूँ तो सुबह जब शेर उठता है तो ये सोचता है कि भाई मुझे आज हिरन से तेज़ दौड़ना है, मतलब अपने शिकार से तेज़ दौड़ना है, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊँगा। और हिरन उठता है तो ये सोचता है मुझे शेर से तेज़ दौड़ना है, नहीं तो मैं शिकार हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। तो भागना ही ज़िंदगी है, दौड़ते रहना है, वो ठीक है। लेकिन आप अगर एक चीज़ आपने मन में सोची है, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, सचिन तेंदुलकर को किसी ने पूछा कि आप क्या काम करते हो, तो सचिन तेंदुलकर ने बोला मैं तो कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं तो खेलता हूँ। वो खेलता है, खेलते ही रहता है, उसका पैसा अपने आप उसको आ जाता है। तो पैसा, मनी जो है ना, वो एक बाई प्रोडक्ट है। आप अपना मन पसंद जो आप काम करते हैं उसको इतनी शिद्दत से और इतने पुरुषार्थ लगा के पूरा उसको कीजिए, इतना बढ़िया से वो काम को कीजिए, और वो काम कीजिए जिसमें आपका मन बनता हो, जिसमें आपकी इच्छा करती हो कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है, तो पैसा अपने आप आपके पास आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है। बट उसमें शिद्दत पूरी चाहिए, उसमें आपकी ताकत पूरी चाहिए, उसको 100% आपको अपना देना पड़ेगा, तब उस काम में आपको पैसा बाई प्रोडक्ट अपने आप आपके पास पहुंच जाने वाला है। पैसा बिल्कुल मायने नहीं रखता है। मैं जब भी काम करता हूं, मैं 100% फोकस के साथ कोई भी काम करता हूं। मेरा टेक्सटाइल का बिज़नेस है, तो मैंने 100% फोकस टेक्सटाइल के ऊपर लगा के रखा हुआ है। पूरी मेहनत करता हूं, सुबह ईश्वर से प्रार्थना करके निकलता हूं घर से कि हे भगवान, हो सकता है मेरे पास आज काम ज़्यादा है, मैं आपको भूल जाऊं, पर आप मुझे मत भूल जाना, आप मुझे याद रखना। और रात को जाके उनको जो भी किया है मैंने, वो उनको सौंप देता हूँ कि ईश्वर, मैंने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से, मेरे में जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगा के मैंने काम किया है। अभी आपको जो रिजल्ट आपको देना है वो आपके हाथ में है, वो आप समझो, और आराम से फिर सो जाता हूँ। तो अगर आप अच्छे से कोई काम करते हैं, बढ़िया से काम करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, साथ में मनी भी आपको मिलने वाली है। करेक्ट सर। जी, थैंक यू सर। कौन स्टार्ट करने से कैसे, वो एक आप आइडिया शेयर करेंगे तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये
टेक्सटाइल के बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो टेक्सटाइल बिजनेस इज ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சார் என்ன சொன்னீங்க திரும்பி சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ். एक्चुअली टेक्सटाइल मुझे तमिल उतनी ज़्यादा बोलने आती नहीं है. अभी से सीख लेंगे सर. बिल्कुल बिल्कुल, आप सिखाएंगे तो मैं ज़रूर सीख लूँगा. बट मैंने यही बोला कि टेक्सटाइल का जो बिजनेस है मुझे सर, कुछ मुझे कुछ वही कुछ एक्सपीरियंस चाहिए. वो वही एक्सपीरियंस जो आपने बिल्कुल. जैसे बोला था टेक्सटाइल बिजनेस ரொம்ப நல்லா है. वो कैजुअली आपने किया, वो कैजुअली चाहिए बिल्कुल सर. बिल्कुल 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 बिल्कुल. एक्चुअली टेक्सटाइल बिजनेस इज ரொம்ப நல்லா இருக்கு. तो बहुत अच्छा बिजनेस है टेक्सटाइल. मैं तमिल कस्टमर को जब अटेंड करता हूँ ना तो मैं पूछ लेता हूँ कि मुझे अगर कोई चीज़ बोलनी है तो मैं क्या बोलूँ. मेरा आइटम है जो मैं साड़ी दिखा रहा हूँ, वो साड़ी बहुत अच्छी है, तो मैं इसको क्या बोल के दिखाऊँ. तो कस्टमर सिखा के जाते हैं मुझे कि ये बोलिए ரொம்ப நல்லா இருக்கு साड़ी. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. तो टेक्सटाइल बिजनेस भी ரொம்ப நல்லா இருக்கு. बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है. कोई भी कर सकता है. सबसे बड़ी चीज़ इसकी यही है कि ये बिजनेस एक बिना पढ़ा लिखा कोई भी इंसान आराम से इस बिजनेस को कर सकता है. एक लेडीज़ घर पे उसको कुछ भी नहीं आता है, साग भाजी खरीदनी आती है ना, अगर वो वेजिटेबल्स खरीद सकती है तो वो ये बिजनेस कर सकती है. खाली पैसा गिनना आना चाहिए उसको. கண்டிப்பா கரெக்ட். तो कोई भी कर सकता है. एक रिटायर्ड अगर कोई फौज से है, मिलिट्री से है, या किसी भी काम से रिटायर्ड हैं, आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, खाली बैठ के क्या होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो भी कर सकते हैं. अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ मैं कह रहा हूँ, आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना जॉब करते रहिए, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा समय होता है कहीं ना कहीं. तो आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड घर में आपके फादर है या बड़े ब्रदर हैं या जो भी हैं, उनको आप एक्स्ट्रा टाइम दे के इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये के अंदर. तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं. हमारी टीम, हम नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, एक स्क्रीन के ऊपर भी देंगे. वो नंबर पे आप कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं. बाकी बिजनेस, टेक्सटाइल का बिजनेस कोई भी कर सकता है. इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है कि ये आज ये साड़ी जो आपने पहन रखी है, ये साड़ी, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है. ये पड़ी पड़ी नहीं फटने वाली है. तो आराम से इस प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर सकते हैं. एक पॉइंट और अगर मैं बताऊं, ये बिजनेस क्यों सबसे अच्छा है, तो हम जहाँ पे रहते हैं, जिस इंडिया में हम रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, वहाँ पे देने लेने का बहुत बड़ा रिवाज है. तो आपको अगर ज़रूरत नहीं भी है ना खुद के यूज़ करने के लिए, तो भी आपके घर में आपकी फैमिली को किसी न किसी को देने लेने के लिए 10, 20, 50 पीस साड़ी साल भर में लग जाना बहुत मामूली बात है. तो इतना यूज़फुल तो है ही है, इतना रिक्वायरमेंट वाला, इतना डिमांडेबल आइटम जब है, तो इसका बिजनेस कहीं भी सक्सेस होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो बिल्कुल कोई भी कर सकता है ये बिजनेस. ரொம்ப தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த தேர்ட் கொஷின் நான் கேட்டிருந்தேன். சார் வந்து நிறைய பேர் வந்து அவர் அச்சீவ் பண்ணணும், மணி மேட்டர்ஸ்ன்னு நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் அது பின்னாடி எல்லாருமே நம்ம ஓடிட்டுருக்கோம். பட் சார் இங்கே வந்து இந்த பிஸ்னஸ் அவரு வந்து சொன்னது என்னென்னா, நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மைண்ட் அண்ட் ஒரு ஹார்ட் இருந்துச்சுன்னா, ஒரு மனசு இருக்கணும், நம்மளுக்கு எது வேணாலும் நம்ம சாதிக்கலாம்னு சொல்கிறது தான் நம்ம வந்து சார் சொன்ன மாதிரி அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த ஒரு டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் சார் சொல்லியிருந்தாரு தமிழில், ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து சொல்லியிருக்காரு, அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதனால தான் சார் வந்து சொல்லியிருக்காருன்றது என்னால் கிளியராக புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அதே மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா
யார் வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு படிச்சிருக்கணும், எஜுகேட்டடாக இருக்கணும், இல்லை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நாலேஜாக இருக்கணும், டிகிரி முடிஞ்சவங்க அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து பணத்தை எண்ணுறோம், கால்குலேஷன் அது தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும். நம்ம வந்து இந்த பிஸ்னஸ் வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் கூட அஜ்மீரா ஃபேஷன்ஸ் கூட டைப் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீனில் கொடுத்த நம்பரில் கூட கால் பண்ணி நம்ம கூட சேர்ந்து கான்டாக்ட் வீட்லேயே உட்காந்து இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சார் வந்து அவரோட தாட்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. சார், என்னோடய 4th கொஷின் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்காங்க. என்ன ஒரு சேலஞ்ச், லைக் நம்மளுக்கு ஃபேமிலி டைம் கிடைக்காது, நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது, கெட் டுகெதர், இந்த மாதிரி ஒரு நம்மளுக்குன்னு ஒரு டைம் எடுக்க முடியாது, என்ஜாய் பண்ண முடியாது லைஃப்பை. அந்த மாதிரி ஒரு பிஸியாக இருக்கணும், ரொம்ப கமிட்மெண்ட்டாக இருக்கணும். அதனால பிஸ்னஸ் நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்க. அதனாலேயே நிறைய பேர் வந்து சேலரி ஒரு ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்தோமா, வீக்கெண்ட்ஸில் நம்ம வந்து ஒரு வீக் ஆஃப் கிடச்சிது, ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறோம், ஃபேமிலி டைம் அந்த மாதிரி. ஆனாலுமே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும், பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும். இதை வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் இதை பற்றி என்ன ஷேர் பண்ணணும்னு அப்படி இருந்தாலுமே ஏன் பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ண நல்லாயிருக்கும்ன்றது உங்களோட கருத்துக்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார். देखिए ऐसा है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं ना, तो महीने के अंत में या महीने के एकदम शुरुआत में आपके हाथ में सैलरी मिल जाने वाली है, वो फिक्स है. लेकिन एक बात मैं बोलूँ, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपकी EMI बढ़ती चली जाएगी. नौकरी में आप बदलेंगे तो सिर्फ आपकी EMI बदल जाएगी या आपके घर की सब्जी बदल जाएगी, और कुछ नहीं बदलने वाला है. आज आलू की बनी है, कल भिंडी की, परसों तुरई की बनेगी. आपको ज़िंदगी अगर बदलनी है तो बिज़नेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस उतार चढ़ाव आते हैं, हर चीज़ में आते हैं. वो फिर नौकरी करते रहिए, उसमें हर महीने आपको मिल जाने वाला है. बिज़नेस में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आप पूरी शिद्दत से मैनेजमेंट के साथ अपने काम को करते हैं ना अगर, तो बिज़नेस में एक मोमेंट ऐसे आता है जब आपको एकदम से ग्रो मिलती है. अगर आप अपने मन का बिज़नेस करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जैसे शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कंटिन्यू वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं टेक्सटाइल के बिज़नेस को लेके एक वो है, हाँ ना. तो ऐसे आपके मन में अगर कुछ टेक्सटाइल बिज़नेस करने की इच्छा है तो बिल्कुल आप कीजिए. और सेफ जोन तो देखिए छोड़ना ही पड़ेगा. आराम वाली ज़िंदगी जो बोलते हैं ना कि भाई बस मैं तो आराम करूं, शाम को बच्चों के साथ रहूं, सुबह फिल्म देखूं, या जो भी एक पार्टी शार्टी करूं, वो सब उसके लिए हम नहीं बने हैं. मनुष्य जीवन हमें मिला है तो कुछ करने के लिए. या तो मैं कहीं नौकरी करते रहूं अकेले, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे नीचे 10, 20, 50 लोगों का रोज़गार चलता रहे, नौकरी चलती रहे. ऐसा काम मैं करूं तो ज़्यादा अच्छा है. तो उसके लिए आपको बिज़नेस करना पड़ेगा, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है. और सेफ जोन की अगर मैं बात करूं तो जो एरोप्लेन होता है आप जानते हैं ना, हाँ, तो एरोप्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ ज़्यादा सेफ है या हवा में उड़ते हुए ज़्यादा सेफ है? मुझे बताएं प्लीज़ आप. एरोप्लेन, वेयर इज़ द एरोप्लेन सेफ, इन एयरपोर्ट or when it is flying? When it is flying, no. सेफ तो वो वहाँ खड़ा हुआ है. When it is landed, it is safe. सेफ, हाँ ना. लेकिन उसकी जो स्पेशलिटी है वो तो जब वो आसमान को चीरते हुए जाए तभी है. वहाँ खड़ा रहने में उसकी स्पेशलिटी नहीं है. तो वही चीज़ है, हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए. ऐसे मतलब अपने चैलेंजेस को और अपनी जो परेशानियां हैं जिनको आप लोग बोलते हैं कि भाई छोटी छोटी मुसीबतें आती है, या ये आते हैं, या चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स आते हैं, उन सबको चीरते हुए, उनको सबको हटाते हुए आगे निकल जाएं, तभी अपना कुछ मनुष्य जीवन लिया हुआ सार्थक है. मैं तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सेफ जोन को छोड़ दीजिए, और अगर कुछ बदलना, ज़िंदगी बदलनी है आपको, तो बिज़नेस की ओर अग्रसर हो जाइए. वो चाहे आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस करते हो.
जी தேங்க்யூ சார். Thank you. ஃப்ரெண்ட்ஸ், சார் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எனக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் சார் அவரோட கருத்துக்கள் ஷேர் பண்ணார். லைக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் திரும்பி கனெக்ட் பண்ணது என்னென்னா, நம்மளுக்கு ஒரு மைண்ட் அண்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது நம்ம எது வேணாலும் எந்த பிஸ்னஸ் வேணாலுமே நம்ம வந்து பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து இருந்தால் நம்ம எதை சாதிக்க முடியும், எதை சாதிக்க முடியாது. நம்ம மனுஷனாக பிறந்திருக்கோம்னா நம்ம ஏதாவது சாதிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு. ஏரோப்ளேனோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு. அது வந்து பறக்கும் போது தான் வந்து அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஆனால் அது வந்து ஒரு தரையில் நிற்கிறதுக்காக வந்து அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காதுன்னு ஒரு நல்லாவே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா, இந்த டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இன்னுமே நல்லாவே அனுபவங்கள் கிடைக்கும். நம்ம வந்து ஒரு நல்ல வந்து ஈஸியாக வந்து சம்பாதிச்சுட்டு போயிடலாம். ஒரு சேலரிடாக இருந்தால் வந்து நம்ம சம்பாதிச்சுட்டு போயிடலாம். ஆனால் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சாதிக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றது தெளிவாக வந்து அவரோட கருத்துக்கள் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. சார், கடைசி கொஷின் சார். ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸில் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் உங்களோட பிளான்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஃப்யூச்சரில் இந்த டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும், அண்ட் ஒரு வேளை டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியாவில் இருந்தாங்கன்னா அதை குறிச்சும் நீங்கள் சொல்லலாம். அண்ட் உங்களோட ஃப்யூச்சர் விஷன் பிளான்ஸ், விஷன்னு ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கு அஜ்மீரா ஃபேஷன்ஸோட ஃபர்தர் ஃப்யூச்சர், அதை பற்றியும் நீங்கள் கொஞ்சம் கருத்துக்கள் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். सबसे पहले मैं विज़न की बात कर लेता हूँ. हमारा विज़न है कि जो भी हिंदुस्तान की जितनी भी महिलाएं हैं वो खुद इंडिपेंडेंट बने. एक हमारी जो जीडीपी जो ग्रोथ होती है उसके अंदर महिलाओं का भी कुछ योगदान हो, ऐसा हमारा मानना है. और इसीलिए हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो महिला सशक्तिकरण जिसको बोलते हैं, उसी के ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं और महिलाओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि आप ये बिज़नेस आराम से कर सकते हो, घर से कर सकते हो, मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये में कर सकते हो. तो ये विज़न हमारा ये है कि हम पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी महिलाएं हैं, एक गांव देहात में भी जो महिला बैठी हुई है छोटे से कोने के अंदर जहाँ पे, वो भी कहीं ना कहीं किसी बिज़नेस से जुड़े, वो चाहे टेक्सटाइल का बिज़नेस हो या किसी भी तरीके का बिज़नेस हो, वो कुछ न कुछ अपना इंडिपेंडेंट अपना बने, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए. और जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उसकी कम से कम, उसके लिए तो उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा हम चाहते हैं. और अगर टेक्सटाइल के बिज़नेस की आप फ्यूचर पूछना चाहते हैं तो टेक्सटाइल का तो देखिए पास्ट भी अच्छा था, प्रेजेंट भी अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा ही रहने वाला है. क्योंकि इंसान जब तक रहेगा तब तक शरीर पे कपड़े रहेंगे, बिना कपड़ों के इंसान पॉसिबल नहीं है. तो टेक्सटाइल तो रहने ही वाला है, ज़िंदगी भर चलने वाला है. अगर मेरे देश की कोई भी जो महिलाएं हैं, अगर वो इस बिज़नेस के साथ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है, तो हम मोस्ट वेलकम उनको करते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये बिज़नेस रुम्बो रुम्बो नल्लाइर के बिज़नेस किसी भी और बिज़नेस की तुलना में ये बिज़नेस एक महिला के लिए तो खास सबसे इजी बिज़नेस है. बाकी करने को कोई भी कर सकता है. टेक्सटाइल का बिज़नेस बहुत टिपिकल नहीं है, कुछ भी बहुत इजी बिज़नेस है. आज जितने भी बड़े ब्रांड का हम नाम लेते हैं इंडिया में, जितने भी है, चाहे अंबानी ले लीजिए, चाहे टाटा ले लीजिए, सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं टेक्सटाइल से है. तो फ्यूचर अच्छा रहने वाला है और उम्मीद करते हैं कि सबके लिए अच्छा होने वाला है. जी ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து சார் கிட்ட கேட்டிருந்தேன் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு. அதே மாதிரி விஷனும் நான் சாரை கேட்டிருந்தேன். அண்ட் ஃப்யூச்சரில் வந்து டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும், அண்ட் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுன்ற ஐடியாவில் இருக்கிறவங்க, ஒரு ட்ரீம் இருக்கிறவங்க, அதை பற்றியும் நான் கேட்டிருந்தேன். சார் நல்லாவே வந்து ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளாக நல்லாவே வந்து அழகாக பதில் சொல்லியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார் வந்து பெண்கள்
ஒரு சிட்டியில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற பெண்கள் கூட வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக வந்து வீட்லேயே உட்காந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னா, அது டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றது சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி அஜ்மீரா ஃபேஷன்ஸோட நோக்கம் என்னென்னா, ஒரு பெண்களுமே ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறது நீங்கள் ஆப்ஷன். இப்போ டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பண்ணணும், கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களும் சரி எல்லாருக்குமே ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக வந்து இது பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும்ன்றது சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி ஃப்யூச்சர்லேயும் பாஸ்ட்டும் நல்லா இருந்திருக்கு, ப்ரெசண்ட்டும் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. ஃப்யூச்சர்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி இதை கொண்டு போகிறதுக்கு இதுக்கு எப்போவுமே இந்த துணிக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு எக்ஸ்பைரி கிடையாது. இது காலகாலமாக எல்லாருக்குமே ஒரு டெய்லி லைஃப்பில் ஒரு துணி வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அது வந்து அதுக்கு எக்ஸ்பைரி இல்லை, இது வந்து நல்லாவே போகும், இதை நல்லா கொண்டு போகலான்றது அவரோட கருத்துக்கள் சொல்லி எக்ஸாம்பிளோட நம்மளுக்கு புரிய வச்சுருக்காரு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சாரோட கொஷின்ஸை நான் கேட்டு உங்களுக்கு சார் வந்து இன்றைக்கி நல்லாவே வந்து பதில் சொல்லி இந்த ஐடியாஸ் நீங்களும் நிறைய சஜஷன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்து கிடைச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா ஒருத்தர்கிட்ட பேசி இன்றைக்கி அவரோட கருத்துக்கள், அவரோட அனுபவங்கள் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன், நீங்களும் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி சார் நிறையவே போட்டுட்ருப்பாரு. ஸோ இந்த வீடியோ நான் இங்கேயே வந்து முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி.